In our last two classes, we were doing the CSS, cascading style sheet. We took very few examples regarding the inline type of the CSS, external CSS and the internal CSS also. As far as the inline CSS is concerned, it is applicable only for a particular element. You know very well. The internal one is useful only for the scope of the single and the current web page only. But the holistic approach is that the external type of CSS which we defined in a separate file is applicable for the whole website. Website means group of the. This type of example we have already taken up, and I think you have already executed all those examples successfully. Are you agree? Now, the main criteria of doing the CSS is for the selection criteria. Selection means that somewhere you want to make customization in the elements of the HTML, but sometimes you don't want to do that particular customization. So now we are coming on a very specific type of topic, that ID selection and the class selection are two approaches in which we declare some CSS, and those declared CSS can be used at any particular element. These are two approaches in which we can use the different element by declaring the CSS. ID selector means if we want to declare something using the hash sign is used for selecting the ID selector. We are selecting the ID, and over there you have to give a particular name. Suppose para1, it will be your own username. This name cannot be existed in the HTML tag itself or the attribute value. It is your own user defined name, which you can write your name also. Suppose Aman, Ayush, like that. Over here, as the curly bracket started, the elements which we have to declare. Suppose font, family is, we last time used Verdana, na? Font size (10 pixel, 20 pixel) like that, na? And now over here we close the settings on the CSS. Now this para1, as we have already told you, that this hash is indicating that you are using the identifier selector. Identifier selector. ID means identifier. This will identify that this particular selector will be applicable only on the P type of select. Over here we have not declared that this particular P para selector is useful for the paragraph itself, because it is our own. कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इंग्लिश में बोलने में? मैं बड़ी लाइटली बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अगर हिंदी में जरूरत पड़ती है तो मैं बता देता हूँ कि हमने किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए एक पैरा नाम का CSS डिफाइन किया, इंटरनल है, उसी पेज में ही है, और उसको बाद में मैंने आइडेंटिफायर से P के लिए हमने तो सेलेक्ट किया. अब यहाँ पे मैं किसी का नाम दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे ले देता हूँ नन्हे श्रीवास्तव, और यहां से मैंने P को बंद कर दिया. Now what will happen? Because this paragraph selection will reflect this setting only where we have declared the identifier.
If in the next time we use P and we write Aman Verma, will it be applicable at this point also? No, because the ID selector means it is being selected for only this particular paragraph only. Okay, this is the scope of the paragraph. But as far as the identifier is concerned, we have to recognize that the hash sign will represent the ID selector. There is another approach which is the class 1. Now the class 1 is saying it is using the hash and this is using by the dot, gov dot. P center. Now the difference between the ID selector and the class selector is, in the identifier selector we use our own name, username, but as far as in this particular class identifier which is used by the, which is recognized by the dot, which is represented by the dot, will be applicable at any particular element, but its name cannot, it is not necessary that its name is unique one. Already center is your attribute value and we are using the center as the name of this particular identifier, so it is applicable. There is no such type of mistake will be carried out in the class identifier. Now class identifier means text align. Text align for center. Color means color of the text, color of the text, padding and all these things, left margin left, that is also applicable. But here is the value center and we are also nomenclaturing it with the name center. It is okay at this particular time, at this particular class declaration time, it is okay. But as far as the identifier selector time means the hash time, it should be your username. So this is the main difference. Now we have never assigned that this particular center is for applicable only for the H1, H2, P type of or particular other type of the element. We have not declared any scope over here. So if in the body structure, you know, it is style should be close and then header should be also close over here. We are also taking up the example also. In body we use P class as center. And write say Dev Rishi. Okay, it will be applicable at this P type. This class will be applicable at P type. But if H1 class is equal to center is assigned and we say Jaideep. Now what will happen? Can anybody suggest? This class with the name center is applicable at paragraph, but simultaneously this is applicable on the H1 also.
once we have all declared a particular class identifier, it will be holistically applicable all the at the all element in the HTML. Maybe it is H1, SQL, P, paragraph, and table, everywhere. Whatever the element you are asking, it is applicable only at that. But if we say only now, what will happen? Will it be aligned with the center? Is this Rajiv Das? Will it be aligned with the center? Will it be having the red color? Because we have not class identifier, class selector is being used over here. Identifier already we have designated to another type of criteria. That's why we will say only the selector, class selector. Means the class selector is the, but for any ambiguity between this particular two type of the element is entertaining the same class, we want to avoid this type of situation. So what we can do, we can say P dot center. If we use this particular notation is saying that center is your class, but it is aligned with the P. Now, over here, it will not work at here. It will be applicable only at this particular paragraph. And of course, over here, it will also not work. This is the main idea behind the identifier and the class selector. Okay. Now I am doing some example. I am putting some example over here, and you can easily suppose H1, H2, and P. What it will say? If the all element is having the same customization on the CSS, then instead of declaring each individual separately, we can declare like this. Now, whatever the customization you are doing over here, the attribute you are defining over here will be applicable H1, H2 as well as on the P also, but not at the table, but not at the H3. Okay, this is also an approach. So now on basis of this, we are giving some illustration on the practical basis, and then you can easily understand what is the criteria behind we are using. Okay, पैडिंग वाला देखी थी, ये कर लोगे? मैं एक काम करता हूँ, सबको हटा देता हूँ, दोबारा से इसको करते हैं. टीआरबीएल, हाँ बोल भी रहा था टीआरबीएल और लिख भी रहा था. तो टीआरबीएल आप नोट करके रखना. इसका कुछ फार्मूला है, इसका मतलब ध्यान रखना कि सबसे पहले जो वैल्यू डिफाइन करोगे आप, वो टॉप के लिए डिफाइन करोगे, फिर राइट साइड के लिए, फिर बॉटम के लिए, और फिर लेफ्ट के लिए. ठीक है, अभी मैं इसके एग्जांपल लूंगा, ध्यान रखना कि इसका मतलब यहाँ पे क्या है. सीएसआई का एक्सटर्नल होती तो क्या करता बेटा, मैं क्या लिखता पहले बता दीजिए मुझे. है लिंक से कर लोगे ना.
लिखने की जरूरत तो नहीं है? ओके। बता सकते हो ना क्या क्या, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अभी जो मैं एग्जांपल आपके सामने रखा, तीनों क्राइटेरिया को, तीनों एलिमेंट को मैंने एक साथ ही डिफाइन कर दिया, तीनों में मैंने कहा अलाइनमेंट उनका सबका सेंटर होना चाहिए, यही कहा ना। और बाद में मैंने कह दिया कि इसको H1 का भी मैंने यूज कर लिया है, इसको मैंने P में भी यूज कर लिया, H2 में भी यूज कर लिया। जिसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं इसका तीनों पे एप्लीकेबल हो पा रही नहीं हो पा रही है। प्रोग्राम का नाम क्या है? CSS2 HTML। हो गया? तो जो H1 था सबसे बड़ा था, H2 सबसे नीचे वाला, वी विल मेट इन द नेक्स्ट क्लास, और जो बीच में हमने लिखा था वो चीज हमारी पैराग्राफ के लिए थी, वो हमारे तीनों पे एप्लीकेबल एक साथ ही होगी। हो गया ना? जो भी बोला था वो सारा काम आपका एग्जीक्यूट हो गया। कोई किसी को प्रॉब्लम है? ओके। इसको बड़ा करके दिख जाएगा, बड़ा आ रहा है? ठीक है, ओके। एक एग्जांपल, इसी में हम एग्जांपल करते रहते हैं, अलग से फाइल नहीं बनाएंगे क्योंकि बाद में फिर हमको कंफ्यूजन आता है कौन सी फाइल हम बात कर रहे हैं। हाँ जी बच्चों, अब क्या करना है आपको? अगर मैं कह दूं आपसे H1, एक एलिमेंट ले लेता हूं और इसको मैं कहता हूं मार्जिन लेफ्ट, अब मैंने कह दिया 10 पिक्सल। पता है ना इसका मतलब आपने किया था? क्या था इसका मतलब? H1 के लिए, सिर्फ H1 के लिए। H2 पे काम नहीं करेगा, P पे काम नहीं करेगा। करके देखें। इन्फॉर्मेशन 10 का पिक्सल आ गया, सेंटर तो होगा नहीं क्योंकि सेंटर में करना नहीं है, बाकी सब कुछ नॉर्मल, लेकिन यहाँ से 10 पिक्सल का लेफ्ट साइड से मार्जिन है, मार्जिन लेफ्ट होगा, लेफ्ट मार्जिन नहीं, मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, सब कुछ समझ आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? ओके। ये इलस्ट्रेशन कुछ इसलिए कर रहा हूँ बेटा, अगर आप लोगों ने नहीं करोगे 10-5 चीजें आपको अलग अलग चीजें में दिखा देता हूँ कि आपको कभी दिक्कत ना आए। बताने की जरूरत तो नहीं है, पी के लिए एप्लीकेबल है ओनली। डॉट लगाया है तो क्लास आइडेंटिफाई होगा, क्लास सिलेक्टर होगा ना, सिर्फ ये किस पे एप्लीकेबल होगा? पी पे, क्योंकि पी के साथ हमने इसको लगा दिया है। अगर हम सिर्फ नॉर्मल लिख देते तो हम इसको कहीं भी यूज कर लेते, लेकिन अपनी पी के साथ एसोसिएटिविटी आपने दिखा दी है, इसको इसका स्कोप रेजोल्यूशन कहेंगे और ये सीधे इसके साथ यूज होगा। अब यहां पर आप जरा देखें, मैं कुछ आपको वैल्यूज दे रहा हूं जो मैं इलस्ट्रेशन करना चाहता था। यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन यहाँ पे देना चाहता, फॉन्ट है, ये भी एक यूज करेंगे इसको, और इसको मैंने लिख दिया नॉर्मल। मैंने आपसे क्या कहा मेरे बच्चों, जो भी आप नाम चाहो
वहां पे या वैल्यू जो भी आपने असाइन कर रखी है उसका नाम दे सकते हो जब हम क्लास की बात करते हैं। लेकिन जब हम आइडेंटिफायर की बात करेंगे तो आपको नाम अपना यूजर डिफाइन देना पड़ेगा, कुछ भी नाम आपका चाहे अपने नाम से दे दीजिए। अभी मैंने पैरा1 दिया था, पैरा1 नाम का कहीं कुछ भी रिजर्व वर्ड नहीं है एचटीएमएल में, तो हम ले सकते थे। लेकिन इस केस में अगर हम क्लास आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं तो हम जो वैल्यू ऑलरेडी हम डिफाइन करते हैं उसको भी हम नाम की तरह यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि फॉन्ट का जो वेरिएंट है, अब वेरिएंट में आपको दिखाता हूँ क्या क्या अलग अलग तरह से कई वेरिएंट में आपको दिखा दूंगा, आपको समझ आएगा वेरिएंट का मतलब क्या है। तो यहाँ पे मैं इसको नॉर्मल कहना चाहता हूँ, ये नॉर्मल दिखाए। तो फॉन्ट वेरिएबल आपका क्या हुआ, एक एट्रीब्यूट हुआ सीएसएस के अंदर और नॉर्मल उसकी वैल्यू हुई और नॉर्मल नाम से मैंने उसकी क्लास डिफाइन कर दिया। ओके, क्या करेंगे मेरे बच्चों, यहां पे आएंगे, यहां पे यूज भी होगा, यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले क्लास क्या लिखूंगा, नॉर्मल। अब देखिए, ठीक है, क्लास का नाम जो था पहले यहाँ पे देखो पी लिखना है, क्योंकि पी के साथ मैंने बनाया था उसकी एक्टिविटी, तो पी लिखना है। पी के बाद आपने क्लास का नाम क्लास लिखना है, फिर क्लास को जो वैल्यू आपने दी थी ऊपर जो नाम दिया था नॉर्मल, उसको वहां पे असाइन कर देना है। अब ये पी के लिए एप्लीकेबल हो गया, जरा करें, सेव कर दें। क्या ये एप्लीकेबल हमारा H2 और H1 के लिए होगा भाई? क्या दिखा रहा है भाई, पी के लिए क्या दिखा रहा है, कुछ कलर जो दिखा रहा है वो देखो, पी कौन सा, बीच वाला था ना, ये सबसे पहला था, बीच वाला था। देख लो अपने ध्यान में इसको बिठा लो कि पी में हमारा इस तरह से जब हम इसको नॉर्मल करते हैं तब कैसे आ रही वैल्यू, ठीक है। अब अगर जब मैं अगली की वैल्यू में चेंज करूंगा तब आपको इसका पता चलेगा कि वेरिएंट ऐसे अलग अलग कैसे चेंज होते हैं। अगला वेरिएंट देखो क्या लिखा है, वी आर डूइंग सीएसएस, सीएसएस कैपिटल में, बाकी सब कुछ हमारा स्मॉल में है और थैंक यू में टी बड़ा है हमारा, देख लीजिएगा। अब बेटा जी जैसा आपने लिखा था सेम एज इट इज उसने वहां पे लिख दिया, नॉर्मल का मतलब तो ये था, जैसा जैसे जिस भी स्टाइल में, जिस भी कैपिटल में, स्मॉल में, जिस भी केस में आपने उसको लिखा था एज इट इज प्रिंट कर दिया, नॉर्मल का मतलब तो ये था। अब आपने यहाँ पे इसको क्या करा, नॉर्मल से हटा के इसको स्मॉल कैप्स, स्मॉल कैप्स का मतलब और देख लो ना, अभी देख लो मैं कुछ कह रहा हूं। अगर ये यहाँ पे समझ आएगा इसको चेंज कर दूंगा, इसका टेक्स्ट मैं तुम्हारा किसी का नाम लिख दूंगा तो पता आपको पता चलेगा। स्मॉल कैप का मतलब क्या होगा बेटा, कि सब कुछ स्मॉल में होगा, लेकिन जो पहला जो कैरेक्टर होगा ना, और जो बड़ा कैरेक्टर होगा वो थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, स्मॉल वाले छोटे थोड़े छोटे आएंगे, दिखाया जाऊंगा आपको। ऐसा बताने से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं प्रैक्टिस क्या क्या कह रहा हूं, कुछ गलती है, वी आर डूइंग लिखा है ना बच्चा। अब इसका एग्जांपल देखना ना, जब आएगा चेक करके तो देखना ना इसको किस तरह से आएगा। हटा दूं पहले H2 हटा दूं, ये चाह रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो, ये लो हटा दिए। कंट्रोल S, टैक्स वही था लेकिन अब कैसा हो गया, सब कैपिटल में, जो स्मॉल वाले थे वो कैपिटल में चेंज हो गए, स्मॉल कैपिटल मतलब यहाँ पे ये था। क्लियर है, अभी और करके दिखाता हूँ, अभी और करके दिखाऊंगा कि कुछ एग्जांपल किसी का नाम दूंगा। पहले से हम चाहेंगे कि हम किसी को कैपिटल में लिख दें, जैसे राजन गुप्ता लिख देंगे तो राजन का आर बड़ा कर देंगे, गुप्ता का जी बड़ा कर देंगे, तब देखिएगा उसमें क्या फर्क आएगा।
ठीक है, हटा देते हैं, फिर आपको एक एग्जांपल वो दिखाते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हुए मुझे बैठ के सारे करने पड़े हैं आप लोगों के लिए कि मेरे ख्याल से सब आपको समझ में आ जाए। लिख रहे हैं यहाँ पे राजन गुप्ता, राजन गुप्ता में कैसे लिखा मैंने, आर बड़ा, यू भी था उसमें, क्या यू रह गया था क्या? ठीक है, ओके, ये स्मॉल था वो कैपिटल में, चलो ओके, अब देखते हैं। अपर केस की वैल्यू है, ठीक है, अपर के ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, इसमें कहीं कुछ भी वैल्यू तो आपको सेम ऐसी बतानी पड़ेंगी आपको। क्या हुआ, हुआ ही नहीं कुछ, जैसा लिखा था वैसे तो है, जैसा था वैसे तो है, लोअर केस में आया, लेकिन हमने तो उसको अपर केस में कहा था, अपर केस में कहा ना, अपर केस की एक मिनट एक गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे वेरिएंट नहीं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म आएगा। अब यहाँ पे जो टैग आएगा बेटा वो आपका यूज होगा, सॉरी, अब आपकी जो एट्रीब्यूट यूज होगा वो आपका क्या होगा, ट्रांसफॉर्म। वेरिएंट के अंदर नॉर्मल वाला हमने यूज कर लिया था, अब हमें करना पड़ेगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म। ये एक अलग से सिर्फ इसलिए एग्जांपल लिख रहा हूँ ये वैसे ना कि आपको दो चार चीज आपको पता चलनी चाहिए कि ट्रांसफॉर्म में क्या क्या आएगा। ट्रांसफॉर्म में उसको चेंज कर देना, पहले हमने चेंज किया कैपिटल में, फिर चेंज कर रहे हैं उसमें अपर केस में, फिर करेंगे उसको स्मॉल कैप में, फिर करेंगे लोअर केस में। ठीक है, सबके अंदर करके देखते हैं। ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसको सेव किया, ये लीजिए, राजन गुप्ता क्या कहा था, स्मॉल और कैपिटल में था ना, अब कैसे आ गया, ठीक है, फिर चेंज करते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को अभी हमने यूज कर दिया, चांसली मैंने पहले से इसको राजीव का आर बड़ा कर रखा था, जी गुप्ता का जी बड़ा कर रखा था, अब मैं सबको छोटा कर देता हूं। ये अभी कई गड़बड़ी है, कुछ हमने गलती से कुछ वैल्यू देता हूँ, स्मॉल कैप, देखो बेटे या तो इसमें चलेगा या ये ट्रांसफॉर्म में नहीं चल रहा,
तो वेरिएंट भी चलाओ उसको, फिर इसको वेरिएंट भी चलाना। देख रहा हूँ, मुझे देखना दो एक बार। स्मॉल कैप का यहाँ पर आप इसको फॉन्ट में ही चलाओ। अब चलो, ठीक है, जो कैपिटल थे वो कैपिटल में रहे, जो स्मॉल वाले थे वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अगर इसी को मुझे पूरा सबको ही पहले से मुझे नहीं पता कि स्मॉल में है कि कैपिटल में है, अगर सबको करना होता तो क्या करता, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, सबको स्मॉल करना होता तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। फॉन्ट वेरिएंट अलग है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म तीन अलग अलग, किसके कौन कौन से, लोअर केस, अपर केस और 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 कुछ नहीं। कौन कौन से बताया मैंने आपको, अपर केस, लोअर केस और इस पहले ये याद रखना, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज, ठीक है। कैपिटलाइज करने क्या होगा मेरे बच्चों, पहले वाला करेक्टर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, जैसे सेंटेंस टाइप का आपका होता है। ये आपने देखा, तीन आपको देखना, स्मॉल केस, अपर केस, लोअर केस और आपका कैपिटलाइज। टैक्स उसमें ये आपका किसमें था, टैक्स ट्रांसफॉर्म के अंदर, और आपका फॉन्ट वेरिएंट के अंदर नॉर्मल या स्मॉल कैप्स, ठीक है। ये तीन चार वैल्यू आपको इस तरह से देखनी पड़ेगी। अब ये सारी बातें थी बहुत आसान, जो मुझे आपको बताने में कोई बहुत ज्यादा ना तो इंटरेस्ट था, और मुझे लगा कि शायद आप लोग यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट ले भी नहीं पाओगे। लेकिन जरा अब देखना, अब कुछ करते हैं। डिवीजन किसी भी पर्टिकुलर पूरे HTML पेज के अंदर कोई पोर्शन, कोई हम पर्टिकुलर सेगमेंट उठाएं, वो किसी का ग्रुप भी हो सकता है एलिमेंट का, वो सिंगल भी हो सकता है, किसी एक चीज के लिए हम उसको डिवीजन नाम दे देते हैं। अगर उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट का ग्रुप बनाना है तो भी हम उसको डिवीजन नाम दे सकते हैं। अभी दिखाता हूँ करके, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या ना क्या चाह रहा हूँ। एक डिवीजन नाम का मैंने अलग से कोई CSS डिफाइन किया, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अलग से अपनी तरफ से, और उसके अंदर कुछ वैल्यू डिफाइन करना चाह रहा हूं। देखो यहां देखिएगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे, यार तुमने सोचा था तुमने कर लिया होगा बैकग्राउंड की, जब गलत हो जाएगा फिर बताओगे सर गलत हो गया। हाँ जी बच्चा, क्या कलर दूं, हैं ना, मैं तो ये दूंगा। ठीक, अब देखो कोई डिवीजन की बात कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर पोर्शन की बात कर रहा हूं, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है आपका, ग्रे। क्या हुआ इसका मतलब, जो लिखोगे टेक्स्ट इसका मतलब टेक्स्ट के और उस डिवीजन के बीच का जो पैडिंग है, जो स्पेस है, वो क्या रखना है अपने 25 पिक्सल का। अभी दिखाता हूं,
फिर उसके बाद एक चीज और कर देते हैं, क्या करूं, सेंटर करते पहले, पहले सेंटर करके फिर उसके बाद उसको लेफ्ट करके देखेंगे, जिससे आपको करेगा इसको। अब डिवीजन का मतलब यहाँ पे समझ लेना क्या मतलब कहना चाहता है डिवीजन में। जब मैंने इसको पैडिंग वर्ड यूज कर दिया ना बेटे, तो ये पैडिंग से ही बता रहा है। देखो बेटे, यहां से जब ये पैडिंग में आपसे कहता हूं, सब पैडिंग कह रहा हूं मैंने कोई लेफ्ट मार्जिन या कुछ भी इस तरह का मार्जिन नहीं था। पैडिंग का मतलब यहां से भी, यहां से भी, नीचे से भी और राइट साइड से भी, यहां से जो भी कुछ था, इन सबकी कितनी वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे बीच में मेरा को टेक्स्ट है जिसको कि मैं सेंटर लाइन अलाइन करना है, और यहाँ से भी जो वैल्यू आएगी उसकी वो 25 के आसपास होनी चाहिए। लेकिन अगर टेक्स्ट में पहले खत्म हो जाता है तो 25 से पहले ज्यादा जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे ये था। सिंपल प्रोग्राम को सिर्फ रन करता हूँ और आप देखिएगा तो आपको कुछ यहाँ पर चेंज नजर आएगा। अबे कहाँ गए राजन गुप्ता, तू राजन, गलती हुई कुछ क्या। यहाँ पर कुछ दिया नहीं। किस नाम से दिया था। अब समझ आ गया ना। एस तीन बार आ गया यार, बेटे गड़बड़ी आ जाएगी यार, देख लिया करो अपना भी। अब बच्चे देखो, आपने 25-25 का मैंने दिखा दिया कि नीचे से भी है ना। देखो यहाँ से मैं सेंटर कर दिया, तो यहाँ से तो फिर इसकी पैडिंग की वैल्यू का कोई वैल्यू नहीं, ऊपर से 25 नीचे से 25, तो इसका मतलब इनके बाद में जो बचता है कलर वो आपका उतनी इतने डिवीजन की बात कर रही है। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, आपको तभी समझ में आता आएगा। मैं इसको 10 कर देता हूँ। नहीं तुझे तो समझ आएगा ही, ठीक है। अब अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूं, सेंटर ना करता, तो ऊपर से तो आपको पैडिंग दिखा रहा है, नीचे से पैडिंग दिखा रहा है, तो लेफ्ट साइड से पैडिंग आनी चाहिए ना, राइट साइड से नहीं आएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड से डाटा वहां तक जा नहीं रहा है। तो लेफ्ट साइड से पैडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको वैल्यू को, अब आपको इस बात अच्छी तरह से प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगी कि मैंने इसको यहां से LEFT कर दिया। और अब जरा आपको समझ में अच्छी तरह से क्लियर होगी बात ये कि अब पैडिंग देखिएगा, सब तरफ से 10 पिक्सल्स की पैडिंग आ रही होगी सब जगह। नहीं आ रही बच्चों। अच्छा, अगर मैं कुछ ऐसा चाहूं कि अगर इसके ऊपर देखो, मैं यहाँ पे ये माउस को यहाँ लेके आया, कुछ नहीं हो रहा ना, लेकिन कभी आपने वेबसाइट पे देखा किसी जगह पे आप लेके जाते हो, वहां पे कुछ ऐसा निशान बन जाता है, किसमें बनता है वो, हाइपरलिंक। जहाँ पे सब्सक्राइब का बट आप कहते हैं सब्सक्राइब वहां पे जाओगे तो उसपे निशान सा बन जाएगा कुछ इस तरह का, शेयर करने पे भी आता है कुछ इस तरह। तो आपने वहां पे देखा है उसको क्या कहते हैं। नहीं,
देखो वो तो अलग चीज है कि आपका लिंक कहते हो कुछ कहते हैं, लेकिन किसी वो ऐसी चीज के ऊपर उस पर जाके रख देना, कर्सर को वहां पे ले आना, इस और उसके बाद उसका नाम चेंज करना, उसको क्या कहते हैं? वो कुछ एक इवेंट है, उस इवेंट का नाम कुछ पता है? क्या क्या? यस, वेरी गुड। तो बेकार से मतलब तुम्हें ये बढ़िया लगा, होवर कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छी बात है बेटा, बच्चा बताए तो बहुत अच्छी बात लगती है। उसके ऊपर क्या लिखा था? ड्यू लिखा था। ड्यू। एक बार डॉक्टर पर फिर जाइए, कहिए कुछ है क्या? दोबारा खोल के दिखाना प्रोग्राम, या पहले से रन कर रहे थे? फिर देखो ऊपर हरे वाला था, नीचे क्या लिखा है मैंने? राजन गुप्ता। चलो देख लो, तो ब्लू आ गया। देखिए ये अभी यहाँ पे चेंज हुआ, इसको मैं लिंक में ही करना पड़ेगा तभी याद होगा, हाइपर लिंक करने जाएंगे। लेकिन मैंने आपको दो चीज अलग दिखा दी कि एक बार मैंने होवर किया, अब इस होवर पे जाके क्या होगा, जब इसको लिंक से दिखाऊंगा कि जब नीले वाले बटन के ऊपर हम जाएंगे तो अपना आप इसका निशान, और फिर चाहे तो वहां पे कुछ एच से कोई किसी दूसरी फाइल को उसको रीराइट भी कर देंगे, उसको हम करते हैं बाद में। लेकिन यहाँ तक बात समझ, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लग रही है, नीला हरा सा। तो तुम्हें नहीं लगता कि आप कोई वेबसाइट वगैरह कुछ बनाओ तो उसका थीम कुछ इस तरह का बन जाना चाहिए आपके पास? और डिवीजन में आपको बता दिया, तो डिवीजन बिल्कुल भी जरूरी है कि आप सिर्फ किसी एक एलिमेंट को लेकर चलते, ग्रुप ऑफ एलिमेंट भी हो सकता है, और जब तक आप डिफाइन करोगे जितनी भी चीज को कर पाओगे। एक एग्जांपल और बढ़िया से लेता हूँ कि आपको सारी बात जो भी हमको टीआरबीएल बताया था ना, टीआरबीएल को खत्म कर देते हैं। एक ही प्रोग्राम को बेटे मैं बार बार खोल के कर रहा हूँ जिससे कि मुझे बार बार दिक्कतें ना आए। क्या कहना चाह रहा हूं? EXE नाम से, एग्जाम्पल के नाम से, एग्जाम्पल 1 के नाम से मैंने एक क्लास डिफाइन की है। किसके ऊपर एप्लीकेबल है? सिर्फ पी के ऊपर, यही है ना, क्योंकि मैंने पी के साथ उसकी एसोसिएटिविटी क्रिएट कर दी पहले से। अब
पहला टॉप से, दूसरा राइट साइड से, तीसरा बॉटम से, उसके बाद लेफ्ट से कितना लेना है, कोई कोमा नहीं, कोई कोलन नहीं, कोई सेमी कोलन नहीं, चारों वैल्यू को एक के बाद स्पेस के साथ आपने एक साथ डिफाइन कर दी। तो अपने आप ही जब आप इस तरह की वैल्यू लिखें तो अपने आप ही साइड में लिख दीजिएगा कि, अरे यहाँ पे इस पे लिखा नहीं जाएगा ना, टी आर मार्जिन के लिए सेव कर दें। पता है वहां पे लिखा क्या है, वहां पे लिखा क्या था, एग्जांपल लिखा था ना, उस एग्जांपल को मैंने यहाँ पे स्टार्ट करना किया। क्या करोगे बेटा, क्या लिखोगे यहाँ पे, वो स्क्रीन के ऊपर लिखा गया चीज है वो तो हमेशा आएगा रहेगा। ठीक है बच्चों, लेफ्ट साइड से कितना मार्जिन था, राइट साइड, ऊपर से आयुष की बात कीजिए आप, नीचे वाला बिल्कुल हमारा वो तो बाय डिफॉल्ट हो गया, सेटिंग जो की थी हमने पहले वाले ऊपर इसके लिए की आयुष ने के ऊपर, तो ऊपर से मार्जिन कितना 10 था, राइट साइड से कितना था 25, मुझे कितना पता, मुझे 25 था, बॉटम से लेफ्ट से नहीं राइट से बताओ ना, चलो समझ गए ना। तो इसको आप देख लीजिएगा, चारों वैल्यू एक साथ भी आप देख सकते हो, लेकिन बिना किसी कॉलम के, बिना किसी कोमा के, बिना किसी सेमीकोलन के कर पाओगे। सिर्फ हाइपर लिंक के एग्जांपल रह गए, वो हाइपर लिंक के एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा बेटा, इसको काटना पीटना है आपको, देख लीजिएगा और आधे घंटे ज्यादा का वीडियो ना बने। ठीक है बेटा जी, इनको आप देख लीजिएगा, ये आपका वीडियो हम डाल देंगे और उसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट हमारे को भेज दीजिएगा, हम उसके बाद उसकी भी जिक्र कर लेंगे। लेकिन जो है चैनल को दूसरों को किसी को भी बता भी दिया कीजिए कि ऐसे ऐसे हम ये पढ़ते हैं, कोई इसमें कमी निकाल सके, कोई उसका एग्जाम्पल दे सके, तो कोई आपको कुछ एडिशन बता सके तो सबका शेयर भी कर लिया कीजिए। ठीक है, जिन बच्चों ने अनसब्सक्राइब कर दिया दोबारा से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगली क्लास में देखते हैं कि कुछ नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। CSS ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया, कुछ एग्जांपल उसके मिसलेनियस रह गए, अगर आपको लगेगा तो उसमें कर देंगे। ओके, थैंक यू।